Hello. Hello, thank you everyone for joining. हमारा सेशन 4 बजे शुरू होगा. तब तक turn off your mic and stay tuned. Hello, good afternoon, everyone, and thank you for joining. Please drop your DSM code and your name in the chat box. और हमारा सेशन 4 बजे स्टार्ट होगा. तब तक stay tuned. And I request everyone to please turn off your mic and you can turn on your camera. Thank you. Hi, good afternoon, Chavi. Hi. Hi, let's do a quick video and audio check, and we can start our session exact at 4. We still have a couple of minutes. I think your sound is okay. Ladies, please give thumbs up if you can hear her and see Can you her. hear me? Can you hear me, everybody? Yes. Okay. All right. All right, Chavi. Let's wait for a couple of minutes and then we'll start. Thank you.
Thank you everyone for joining. I welcome Chavi Mittal here as a guest speaker. Thank you, Chavi, for joining us. This is our part 2 on positive parenting. अभी तक हम लोगों ने हमारे part 1 में बात की थी how to manage work and children, how to manage children's stress, fear, and anxiety, along with how to discipline them and get them listen to you. इसके बाद हमने बात की थी how to teach your children and how to limit their screen time. आज का हमारा सेशन इज अबाउट बिल्डिंग कनेक्शन विद देम एंड हाउ टू मेक दिस बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर किड्स. So we have Chavi Mittal here with her expert and advice and experience. Yes, Chavi, over to you. Thank you so much, Hanika. Thank you. And hi, all the mothers here who are present here. ये सब आप लोग same मतलब first session में भी आप लोग थे कि do I have some new mothers today? Just like give me like a thumbs up if there are some new mothers today. Okay. I think there are a few new joiners. Yes. Okay, that's great. How are you guys doing today? It's where are you? I would like to know a little bit about you also. आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? Like, can one of you tell me? Nivedita, if you can turn on your camera, and after Hi, that, Chavi. I see Maryada Sethi raising her hand. Maryada ji, aap apna then Kanika, yes. Hi, Yes. Chavi. Hi, Nivedita. Okay. Yeah, this is Deepa. Actually, I'm Nivedita's mom, Deepa Khatri. Okay, Deepa. I am from Lucknow. Okay. I'm a mother of 2. Yes, I remember that from Yeah. the last session. Yeah. Okay, Yeah. so basically, I'm assuming that different parts of India, we are all from different parts. Yes, Chavi. So we have ladies from Pan India, across Pan India. So we have these 4 groups in our President's Club. They all are the first lady of Samsung outlets. So they support their husbands in their work, and we all have them here. And like if you can just name a state, and everybody's here from there. Oh, how Yeah. nice to hear that. And I think the other thing, which is other than Samsung, the other thing which is common between all of us is that we are all battling the same struggles with the kids. चाहे मुझे लगता है कि बच्चा चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, सेम एज का जो बच्चा है ना, उसकी प्रॉब्लम्स अक्रॉस द ग्लोब सेम ही होती हैं. पेरेंट्स को सेम ही प्रॉब्लम्स सिमिलर एज ग्रुप के बच्चों के साथ आती हैं. So first of all, don't think you're alone. We are all in this together and we are all learning day by day. So Hanika, what is it that you want me to start with? Yes, Chavi. So our first question is how to avoid mistakes being a parent. Yeah. Somebody's Please, mic is on. everyone, please turn off your mic. I request everyone, yes, please. So, Chavi, how to avoid mistakes? Mistakes. Okay. सबसे पहली बात तो ये है कि you cannot possibly avoid mistakes. My daughter is calling. Let me take her call on this. Hello. Hello. हाँ बच्चा. I'm not feeling well. Oh, what happened? What happened, beta? Nothing. Okay, I'll call you back then. If your throat is not okay, can you please have the Kada? Okay, and I'm feeling weird. I'll call you back, beta. I'm in a session right now. Okay, my love? My feet are tingling. Okay. Feet are tingling. Yeah. Did you get wet in the rain? No. Okay, fine. Let me come home and look at them, okay? Have the Kada. Bye, beta. I love you. Okay, so what just happened on the call is that she wanted some attention and she's just got back from school. This happens every day. She misses me. She comes back home. She calls me. Sometimes I'm busy, sometimes I'm not. These things happen with all of us. Anyway, coming back to what are the mistakes that we have to avoid as a parent. सबसे पहली चीज जो मैं बहुत पेरेंट्स को करते हुए देखती हूँ वो है हर चीज के लिए नो बोलना. I think that's a very big mistake that we are making when we are stopping our children from doing everything that they want to do. वहां से कूदो मत.
मत करो, अरे मिट्टी में मत जाओ, अरे बारिश में मत भीगो, अरे वो उसको मत छेड़ो टूट जाएगा, ये मत करो, वो मत करो, या टाइम मत वेस्ट करो, टीवी मत देखो. ये the word no itself, when we say it again and again to our children, it has a negative impact on them. As parents, we should try and make a positive impact on the children rather than a negative one. तो कोई चीज अगर मना करनी है उसको मना करने के तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें रियलाइज करनी है वो ये है कि हर चीज के लिए उनको मना करना भी नहीं चाहिए. You know, we have to understand the difference between what is risky and what is dangerous. When we tell them कि आप छोटा बच्चा है, वो नया नया जंप करना सीख रहा है, तो वो पहले कोशिश करेगा कि छोटे से स्टूल से जंप करे, फिर कोशिश करेगा थोड़ा और ऊंचा जंप करे, टेबल से जंप करे, फिर बेड से करेगा. वो हाइट ढूंढता है जंप करने की, बिकॉज वो एक नई चीज सीख रहा है. लेकिन अगर हम उसे मनाही करते रहेंगे, नहीं नहीं वहां से मत कूदो, तो वो सीखेगा कैसे वो स्किल? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, इज दिस समथिंग विच इज डेंजरस फॉर हिम, इज इट लाइफ थ्रेटनिंग, और इज इट समथिंग विच इज रिस्की? गिर सकता है, चोट लग सकती है, रिस्की है. So we have to, rather than saying no to our children, we have to try and explain to them that this is risky, hence be careful. Trying to tell them, teach them to do things carefully rather than not doing them at all. उससे क्या होगा? बच्चा डर जाएगा और उसके दिमाग में डर पैदा हो जाएगा हर चीज का. And these things at a younger age are not just limited to one particular thing. कि कूदने को मना कर दिया for example, अगर तो कूदने से डर लगेगा उसको. The basic concept of fear is going to be inculcated in him, and he's going to be afraid to try anything new as he grows up. So saying no to everything without realizing, we should not do. Also saying no का दूसरा example ये होता है कि हम समझो बच्चे ने एक टॉय मांगा, हमने मना कर दिया, बच्चा रोया, टैंट्रम थ्रो किया, फिर हमने कहा अच्छा ठीक है ले देते हैं. That's also a mistake that we are making, because what are we teaching the child? If you throw a tantrum, your wish will come true. If you cry, your wish will come true. So if you have a substantial reason to say no to something, you should be stern enough to say no, no matter what. Yeah, ताकि बच्चे को समझ में आए that the power of fear is stronger than the power of tears. Okay, तो ये एक दूसरी चीज है. And another thing that we as parents do, and I'm not saying we do it intentionally, but हम लोग realize भी नहीं करते हैं हम ये कब कर जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को compare कर लेते हैं दूसरों के बच्चों के साथ. उसके बच्चे को देखो, उसके मार्क्स बेटर आए हैं, या वो क्रिकेट बेटर खेलता है, या उसका वो डांस में बेटर है, या वो देखो फर्स्ट आया. I cannot even begin to tell you what impact it has on the child's mind. Imagine, I'm going to give you a very harsh example which will make you understand. How would you feel if your husband comes back home and says, Mr. Sharma की वाइफ को देखो, वो तो अपना इतना ख्याल रखती है, वो भी तो बिजी है, वो तो you know खाने का भी ध्यान रखती है, she dresses up well, मेकअप भी अच्छे से करती है, तुम क्यों नहीं कर सकती? That sort of statement, what will it do to your self-confidence and your ego? बच्चे के ऊपर exactly ऐसा ही असर होता है, चाहे आपने कुछ भी क्यों ना बोला हो, because for the child वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहा है, वो अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहा है. और अब हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम आजकल मतलब बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और बड़ा हम लोग सुनते हैं कि यू शुड कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ, यू शुड डू बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे. हम लोग सीख रहे हैं ये चीजें, तो हम ये चीजें अपने बच्चों को आज क्यों नहीं सिखा रहे हैं? वो बड़े होके 30 साल की उम्र में ये चीजें सीखेंगे, उससे बेटर है हम आज ये चीज उनको सिखाएं. You have to be better than yourself. कल आपने जो ड्राइंग बनाई थी, आज आपकी ड्राइंग उससे भी बेटर है. वाओ, कि आपका कल कलर लाइन से बाहर जा रहा था, अब बहुत अच्छा हो रहा है. That encouragement is something that we forget. So comparison तो करना ही नहीं है. हमारा बच्चा जो है वो अपनी फील्ड में अच्छा है, उसके अपने टैलेंट्स होंगे, किसी और के बच्चे के उनके टैलेंट्स होंगे, हमें नहीं पता उनके जो टैलेंट्स नहीं है वो क्या है. We are not going and living in somebody else's house and seeing how their child is behaving at dinner time with his parents, how badly he's behaved, rather than we tell our child कि अरे आप कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो. उनका बच्चा तो बिल्कुल नहीं करता, अरे आपके सामने नहीं करता, आपको क्या पता वो घर में क्या करता है. So no comparisons.
सेकेंड, उसके अलावा एक और चीज जो हम लोग करते हैं वो अननोइंगली हम अपने बच्चों को ये सिखा देते हैं कि आपको दुनिया के लिए जीना है. You have to please others. How do we do that? How do we do that? We don't even realize. We say, अरे ये ड्रेस पहनो, सब लोग बोलेंगे कितनी अच्छी लग रही है. सब लोग बोलेंगे is not important ना. तो आपने उस बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि सब लोग जो बोलते हैं वो important है. मुझे जो करना है, मुझे वैलिडेशन चाहिए दूसरों की. अब मतलब दिवाली है, बच्चे ने अच्छा कुछ पहना है, आप बोल रहे हैं वाह देखो अभी सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे वाह कितना अच्छा लग रहा है. किसी ने नहीं बोला, बच्चा का तो मुंह वहीं उतर जाएगा कि अरे उन्होंने तो बोला ही नहीं. दिस इज हाउ वी एंड अप लुकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड. यही तो सोशल मीडिया तो जिंदा है इस पे. लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है इस चीज को, वैलिडेशन का. जब तक आपको 4 लाइक्स नहीं आएंगे आपकी पोस्ट पे, तब तक आपको लगेगा आप अच्छे ही नहीं लग रहे हो. क्योंकि बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि सामने वाला बोलेगा अच्छे लग रहे हो, सामने वाले ने ताली बजाई तो आपने अच्छा गाया. अरे नहीं यार, ये चीजें अपने को खुश करने के लिए होती हैं. आप जो खा रहे हो, जो कर रहे हो, कोई टैलेंट है आप में, यू लाइक टू सिंग, यू सिंग बिकॉज इट मेक्स योर सोल हैप्पी, नॉट बिकॉज इट मेक्स द लिसनर हैप्पी. नो. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट. एक और मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम बच्चों को जो कहते हैं वो हम खुद नहीं करते. वी डोंट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच. व्हेन वी फील कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना तो समझाया है, करते ही नहीं है. वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप नहीं करते हो. आप घर आते हो, ऑफिस से घर पहुंचते हो और आप टीवी लगा लेते हो. यही काम बच्चा जब स्कूल से आके करता है तो आपको प्रॉब्लम होती है. बट कहाँ से सीख रहा है बच्चा? ही इज लर्निंग बाय एग्जाम्पल. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. कोई और एग्जाम्पल दे सकता है आप में से कोई भी मुझे इस चीज का, जो चीज आप करते हो खुद से लेकिन बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि ना करें? Please raise your hand and unmute yourself. डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं आप बोलोगे जो हमने नहीं किया है ऑलरेडी. जस्ट ब्रीथ. हाय Just सभी, be- ट्रू स्टैंड में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे सीरियल देखे हुए हैं. थैंक यू. थैंक यू मैम. मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं बच्चों को स्पेशली ये बोलती हूँ कि आपको बाहर का कुछ भी खाना है इन ए वीक, एक हफ्ते में एक बारी कुछ भी. लेकिन ऑलमोस्ट मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अपने बच्चों को तो मना कर देती हूँ लेकिन मैं शायद खुद उनसे ज्यादा खाती हूँ. और जब मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा क्या हम ऑर्डर करें बाहर से, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, बाहर का मन नहीं. मम्मी आपने तो कल खाया था. तो आपने वीक में ऑलमोस्ट आपकी किटी भी आपने 2-3 बार तो खाया ही होगा. हमारा तो भी फर्स्ट है. तो मेरे को इस टाइम ये लगता है कि जब मैं जो काम कर रही हूँ मुझे बुरा नहीं लगता, तो जो मेरे बच्चे करते तो मुझे बुरा क्यों लगता है? करेक्ट. वेरी गुड एग्जाम्पल. एक और भी आई थिंक किसी ने हाथ उठाया था. Sejal, सेजल, आई थिंक. Sejal, you can unmute yourself. Yes, please go ahead. हाँ, मेरे साथ ये होता है कि मेरे बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, तो अल्टीमेटली कभी मुझे भी रियलाइज होता है कि अरे मैंने भी तो चिल्ला के ही बात की थी. करेक्ट. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं. हमें लगता है कि अरे मैं तो माँ हूं ना, तो मैं नहीं चिल्लाऊंगी, तो मेरे से क्या कंपैरिजन है तुम्हारा, तुम तो छोटे हो, मैं तो माँ हूं तुम्हारी. सो दैट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक वी मेक. किड्स डोंट लुक एट इट लाइक दैट, बट दे वांट टू बी इक्वल्स. तो हमने जो किया, हम तो उनके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल्स हैं, दूसरों से भी बहुत ज्यादा. तो वो सबसे ज्यादा हमें फॉलो करते हैं. Right. थैंक यू सो मच. Thank you, Chavi. Our next question is how to raise confident children. ओके. सबसे पहली चीज तो ये सदगुरु ने कहा है दैट यू डोंट रेज चिल्ड्रन, यू रेज कैटल. बच्चे जो है वो कैटल नहीं है, तो आप रेज नहीं कर रहे हैं उनको. वो अपने खुद इंडिविजुअल्स हैं, वो खुद बड़े होंगे अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से. आपको एज अ पेरेंट उनको, ताकि वो कॉन्फिडेंट बने, क्या करना है, आपको उनको सिक्योर करना है. यू हैव टू, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज समथिंग दैट इज प्राइमरी व्हेन इट कम्स टू रेजिंग कॉन्फिडेंट अडल्ट्स. इवेंचुअली जब बच्चे बड़े होते हैं वो कॉन्फिडेंट तभी होंगे जब वो बिल्कुल सिक्योर होंगे अपने आप को लेकर, उनको कोई डाउट नहीं है अपने अंदर. दूसरी चीज ये होती है दैट एनकरेजमेंट. हाउ डू यू एनकरेज द चाइल्ड? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चा बेसुरा गा रहा है और आप बोल रहे हो वाह वाह क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया. दैट्स नॉट एनकरेजमेंट, दैट्स बीइंग स्टूपिड. बट
एनकरेज करो, जो चीज अच्छी कर रहा है बच्चा उसमें उसको एनकरेज करो. दिट वाज अ गुड अटेम्प्ट, इट्स अ गुड वे ऑफ सेइंग इट, कि बहुत परफेक्ट नहीं था बट इट वाज अ गुड अटेम्प्ट. दैट्स हाउ यू रेज देम कॉन्फिडेंटली. और दूसरा, उनको अपना डिसीजंस खुद लेने दो, उनको डिसाइड करने दो कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में. जितने मतलब छोटे बच्चे हैं उनको सिंपल डिसीजंस लेने दो, थोड़े बच्चे बड़े होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस लेने दो. जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका डिसीजंस किस तरह की सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे वो डिसीजन ले रहे हैं, वो लेट दैट चेंज. बट हैविंग द फ्रीडम टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स एंड देन एक्सपीरियंसिंग द आउटकम ऑफ इट, कि मैंने ये डिसीजन लिया, इससे ये हुआ, मैंने सही डिसीजन लिया. You know, like my 4-year-old, he decides which swimming costume he wants to wear to the beach. He has his own funda in his mind. I have my own funda. मुझे लगता है कि अगर बहुत धूप है तो थोड़ा कवर्ड होना चाहिए, you know, सनबर्न नहीं हो जाए उसको. उसका कुछ और फंडा होता है, वो क्या होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, but I know he has some फंडा in his mind. Like one day he told me, now he's growing up, तो थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा है वो अपने आप को. तो एक दिन उसने मुझे बोला कि इसमें यहाँ जिप जो यहाँ तक आती है वो मेरे को ठीक नहीं लगती है, अनकंफर्टेबल होती है. Which was absolutely logical. He's looking at his comfort. And I gave him the freedom to decide it. Sunburn होगा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. You know? But the fact that I let him choose, I let him decide, gave him the sense of confidence कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे comfort के हिसाब से मैं ठीक कर रहा हूँ. So these are some of the things which are important when we talk about the confidence in children. छवि, और हम लोग अब अगला सवाल इस पे जाएंगे कि 20 मिनट स्टोरी पेरेंटिंग प्लान, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? Okay, पहले तो आप मुझे बताइए 20 मिनट स्टोरी क्या होती है? Like the story has to be 20 minutes. That's what you mean. Hanika, I'm asking you. Yes. Okay. I thought disconnect हो गया था. There was a disconnection. Yes. अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम 20 मिनट स्टोरी पेरेंटिंग प्लान को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के. हाँ, so my question to you is 20 minute story मतलब the story should be 20 minutes long. That's what No, I mean. no, not the 20. See, it is like telling story for every हाँ. situation. हाँ. आपको जैसे कि हमने पहले सेशन में बात की थी कि किस तरह से हम स्टोरी बोल करके, स्टोरी बता करके बच्चों को अपनी बात कन्विंस करने के लिए, या उन तक हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, वो उन तक पहुंचाए, और टुगेदर वी कम टू सम सॉल्यूशन. So the storytelling though is one of the best methods to convey your point across to your children. मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि मैं जो स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाती हूँ वो मैं किसी बुक में से नहीं पढ़ती हूँ, वो मैं अपने दिमाग से ही सुनाती हूँ, so that I can mold them according to what I want to say and what I want them to hear. स्टोरी बुक्स में क्या होता है, जो स्पेशली जो ये फैंटेसी जो स्टोरीज होती हैं उसमें बहुत अनरियलिस्टिक चीजें भी होती हैं, राइट? कि फ्रॉग को किस करो तो वो प्रिंस बन जाता है. वो चीज बच्चों को कैसे समझाओगे आप कि ये चीज रियल नहीं है बेटा, दिस इज फैंटेसी? हाउ देन दे विल से व्हाट इज फैंटेसी, व्हाई इज इट रिटन इन द बुक? दे हैव वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस. तो मुझे लगता है कि स्टोरीज ऐसी होनी चाहिए जो रियल हो, और रियल स्टोरीज बेस्ट वही होती हैं जो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से आती हैं. अपने एक्सपीरियंसेस की स्टोरी को आप सिंपल शब्दों में बच्चों को बताओ तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हो और उनको कुछ एजुकेट भी कर सकते हो, एंटरटेन भी कर सकते हो. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स. एवरीवनस एंजॉयिंग इट. कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई क्रैंकीनेस नहीं हो रही है, कोई टैंट्रम नहीं हो रहा है. आप एक कहानी सुना रहे हो जो बच्चा बड़े इंटेंटली सुन रहा है. नाउ कहानी सुनाते टाइम storytelling में one thing has to be very you have to be careful about one thing. आपका जो expression है you keep it as flat as possible. मतलब आप बोल रहे हो कि एक राजा था, वो जा रहा था, उसका घोड़ा गिर गया, वो मर गया, तो ये नहीं कि वो जा रहा था, वो मर गया, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर वहां से आंधी चली. Don't do that. The reason is आप अपने fears, अपने इमोशंस बच्चे को लाद रहे हो. लेट द चाइल्ड इमेजिन ना. मरना बुरा है ये किसने सिखाया हमको?
किसने सिखाया? ये स्टोरीज नहीं सिखाया हमको. हमको गलत तरीके से स्टोरीज हमने सुनी है, इसलिए हमको लगता है कि मरना बहुत गलत चीज है. सब मरते हैं. Come to think of it, it is the end of life. You are born and then you live a life and then you die and then again you're reborn or not reborn, we don't know. But what if you put expressions to your story, तो बच्चा जो उसमें से सीखना चाहता है ना, वो नहीं सीख पाता है. वो आप ही ने, आपके जो फियर्स, आपके जो इनहेरेंट जो चीजें आपको लगता है, आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स बच्चे में आ जाते हैं. उसकी अपनी पर्सनालिटी ग्रो नहीं कर पाती. एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी. ये आप किसी छोटे बच्चे को सुनाओ, उसका कॉनोटेशन कुछ और होगा. किसी और को सुनाओगे, उसका कुछ और होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी? somebody can think this is a happy story. राजा रानी बड़ी खुशी से रहे, उसके बाद वो दोनों मर गए और कहानी खत्म हो गई. somebody might think कि राजा रानी थे, बेचारे बहुत बीमार पड़ गए, उन पे कुछ प्रॉब्लम आ गई इसलिए मर गए. somebody might think कि कोई वॉर हो गया इसलिए मर गए. there's so many connotations you can make. So we don't want to tell the children what the story means. We want them to understand. और हम जो मैसेज उसमें पहुंचाना चाहते हैं बच्चों को, वो बहुत सटल होना चाहिए. अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो आप कहना चाह रहे हो वही समझेगा बच्चा. वो आपसे ऐसा टेढ़ा सवाल पूछेगा कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ओ अब इसका क्या जवाब दूं मैं. यू नो, व्हिच इज ग्रेट बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज योर फीडिंग और फ्यूलिंग द माइंड ऑफ द चाइल्ड, द इंक्विजिटिव माइंड ऑफ द चाइल्ड. उसका क्रिएटिव माइंड जो है, आप उसको फ्यूल कर रहे हो, आप उसको दबा नहीं रहे हो. आप अपने क्रिएटिव आइडियाज से उसको भर नहीं रहे हो, आप उसकी क्रिएटिव आइडियाज उभरने दे रहे हो. So that is a very important thing when storytelling, if you're trying that method. Our next question is how to be a calm parent. So we have experience, everybody has experience that हम लोग कभी कभी उनको डिसिप्लिन करने के चक्कर में या फिर उनसे अपनी बात मनवाने के लिए या उनको कुछ सही गलत समझाने के लिए we lose our calm, which obviously put very bad impact on them. हम लोगों का गुस्सा वाला हम लोगों का फेस उनको दिखाई देता है. And again, as you mentioned, we put our fears in them with our expressions. So how do you look at this question? See, this is the most difficult thing to do. You have to stay calm in the face of every situation. Again, we also have to give ourselves a little bit of leeway and understand that we are human beings too. We also have emotions. ऐसा हो सकता है कि माँ ने बहुत मुश्किल दिन हुआ है ऑफिस में, बॉस की इतनी डांट पड़ी है कि समझ नहीं आ रहा क्या करे. वो घर सोचिए मुझे घर जाना है, वो घर पहुंची, यहाँ बच्चा शुरू हो गया. It's a very realistic situation. Anybody can lose their calm. So इस ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं कि आप थोड़ा काम रहें. But now let's look at a normal day when nothing has happened but the child is really getting on your nerves. सुन ही नहीं रहे, बात ही नहीं सुन रहे. So you have to understand how it will help you stay calm is that you understand that the tantrum that is being thrown now, मतलब एक हर सिचुएशन में मतलब एक ही टैंट्रम हर एक सिचुएशन में नहीं थ्रू होता है. हर सिचुएशन का टैंट्रम अलग होता है, उसका हर टैंट्रम का कारण अलग होता है. तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो. ये नहीं बोल सकते कि यार तुम तो हमेशा ऐसे बात करते हो, कि जनरलाइजेशन हो गई. बिकॉज अभी वो क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? राइट नाउ व्हाट इज कॉजिंग द टैंट्रम? राइट नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट यू हैव टू फिगर. एंड यू हैव टू रियलाइज दैट एज अडल्ट्स, as grown-ups who have seen so much in life, हमने क्या नहीं देखा है. हम हर तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हैं. तो भी अपने इमोशंस के साथ डील करना किसी के लिए इजी नहीं होता. Sometimes you get really overwhelmed, you want to cry. I mean, like I'm saying, if your boss shouts at you in office, कोई भी रो देगा यार. बाथरूम में जाके कुछ लोग रो देंगे, कुछ लोग सामने रो देंगे, वो अलग बात है. बट कभी कभी इमोशंस हैंडल करना मुश्किल होता है. या घर पे फाइट हो रही है, हस्बैंड के साथ फाइट हो रही है, या मॉम ने कुछ ऐसा बोल दिया, या किसी ने, फ्रेंड ने कुछ ऐसा मीन बोल दिया. So difficult for us to control our emotions. If we cannot control our emotions, then how do we expect the child to control his or her emotions? उसको तो पता ही नहीं है कि मुझे फील क्या हो रहा है. So सबसे पहली चीज है, in case of a tantrum, you ask the child, what are you feeling? What are you feeling right now? Help them understand their own feelings. Then I'm feeling dejected. I'm feeling frustrated. मुझे लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है.
I'm feeling irritated. बहुत हो गया. And he will not be able to use these words, maybe irritated, frustrated, dejected, big words for small children. But trust me, they will be able to explain themselves so you will understand what they are feeling. And once you understand what they are feeling and you put yourself in their place, कि ये छोटा बच्चा है, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, इसको तो मैं ही सिखाऊंगी, तो आप अपने आप काम हो जाओगे. You will suddenly get that warm instinct back towards your child where you feel that he needs me right now. He really needs me right now because मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी, संभाल लूंगी. या मे बी मैं अपने हस्बैंड के ऊपर जाके सब ऐसा उल्टी कर दूंगी, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो संभाल लेंगे. लेकिन बच्चे को कौन संभालेगा? I cannot load my stress on the child. Once you understand that, it's very easy to be calm. And worst case scenario, when you are really like you cannot do anything, बिल्कुल किसी चीज को करने की हिम्मत नहीं है, कुछ भी मत बोलो. यहां से सुनो, यहां से निकाल दो. पहले आप ठंडे हो जाओ, उसके बाद बच्चे को ठंडा करो. सुनो, calmly उसकी बात सुनोगे, बच्चा भी काम होगा. And also another technique which I try is when either one of them throws a massive tantrum, I just go and hug them. You know, it is जैसे वो कौन सी पिक्चर थी वो जादू की झप्पी. It really works. You just go and hug them. That heartbeat exchange and that touch, it will help calm the child down. And then you ask them calmly कि क्या हुआ है? क्या हुआ है? बताओ मुझे. We'll handle it. We'll deal with it. We'll find a solution. You stay calm, you'll also feel good about yourself the way you handle the situation. Child also will have more confidence in you that this is a person who's always there for me. थैंक यू छवि. अभी जैसे हम लोगों ने बात की अबाउट हग, जब भी अगर कोई हमारे बच्चे अगर टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं तो जस्ट गो एंड हग देम. सो इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है, हाउ टू क्रिएट एन एवरलास्टिंग इमोशनल बॉन्ड विद योर चाइल्ड. तो हम लोग जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, छोटे तो हम पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो हमें पता है दैट यस दैट बॉन्ड इज देयर. लेकिन जैसे वो ग्रो करते हैं तो वो अपने फ्रेंड सर्कल और बाकी सब जगह पे वो प्यार बढ़ता चला जाता है, और वो जो बॉन्ड है वो हमें लगता है जैसे वीक होता जा रहा है. तो उसको कैसे मेंटेन करके रखें, कैसे बनाए रखें? So again, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो उसको physical touch ज्यादा चाहिए होता है. You know, because he's breastfed the mother, he's used to cuddling. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो बाहर की दुनिया में जाता है, राइट? उसको थोड़ा थोड़ा फ्रीडम मिलता है. शुरू में वो क्रेव करता है कि मैं घर जाऊंगा, मम्मा मिलेगी, पापा मिलेंगे. धीरे धीरे वो और बड़ा होता है, उसको फ्रीडम और मिलता है. तो द चाइल्ड इज स्प्रेडिंग हिज विंग्स. बट वी एज पेरेंट्स, थिंक अबाउट इट, हमारा अटैचमेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है. बच्चे का अटैचमेंट जो है वो कम हो रहा है, लेकिन हमारा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बच्चे का तो अभी पूरा कैनवस एम्प्टी है, उसको जाके पेंट करना है उसके ऊपर हजारों लाखों चीजें. हमारा कैनवस भर चुका है, हमारे पास ज्यादा चीजें हैं नहीं अभी करने के लिए, तो हम कर चुके हैं हमको जो करना था. नाउ आवर लाइव्स रिवॉल्व अराउंड द चिल्ड्रन, इसलिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. तो वी हैव टू नो कि पतंग को ढील कब देनी है. दैट इज अप टू अस. आप देखेंगे कि आप किसी भी, not just in as a child, not just with a mother and a child's relationship, but even in girlfriend boyfriend, even in husband wife, जितना ज्यादा आप किसी को कंट्रोल करना चाहोगे उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागेगा. This is like she is getting too much, this is too much. Children also feel like that, they are exactly like us. तो जितना आप उनको ढील दोगे उतना वो आपके पास रहेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि बच्चे को हमेशा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, my mom and my dad, they are always going to support me. Imagine, we also as adults, हम किस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि ये बंदा रहेगा. शादी में मेरी नहीं बनी, मेरे पति के साथ नहीं बनी, बीवी के साथ नहीं बनी, डिवोर्स हो गया, मगर पेरेंट्स विल ऑलवेज सपोर्ट. दैट कॉन्फिडेंस योर चिल्ड्रन शुड हैव कि माय मदर इज ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट मी नो मैटर व्हाट. गलत काम किया है तो भी मुझे डांट लेगी, मुझे समझा लेगी, मुझे थप्पड़ भी मार देगी, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगी, मेरे साथ ही रहेगी. शी इज गोइंग टू सपोर्ट मी बिकॉज शी लव्स मी अनकंडीशनली. दैट अनकंडीशनल लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू बिल्ड दैट अनकंडीशनल लव, हाउ यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड इज यू प्रूव इट, लाइक यू शो इट टू देम कि आपका कभी झगड़ा हुआ, समझो बच्चे के साथ कुछ आप चिल्ला दिए, आफ्टर 2 minutes यू शुड बी नॉर्मल. रात गई बात गई वाली 2 मिनट में बात हो जानी चाहिए. If you prolong it,
like a chewing gum if you stretch it, कि मैं नहीं बात करी, कल ऐसे बात की थी तुमने मुझसे, मैं नहीं बात करी, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी हिलता है, उसको लगता है कि if I do something really bad, she is not going to talk to me again. उसको नहीं पता कि ये मेरी माँ है, ये ऐसा होएगा नहीं, बट उसको वो चीज सिखानी जरूरी है कि ऐसा नहीं होगा. He is not going to assume it, because then it's just taking you for granted. He should not take you for granted. तो जहाँ in fact I think this holds true for couples also. When you have a fight with your husband, you fight about it, you say what you have to say, then you go back to normal life. You don't sulk about it for a whole night or 2 nights कि हमारी तो झगड़ा हुआ था पिछले हफ्ते. A wrong way of looking at life. ये झगड़ा हुआ था हमारा किसी और चीज को लेके, हम निकाल रहे हैं खाने पे, you know, या मैंने फोन नहीं उठाया उसका. So these things, even when a couple fights, children look at these things. Children learn by example. They see कि अच्छा बात को खींचना होता है, झगड़ा खत्म नहीं करना होता. They should understand कि झगड़ा is not झगड़ा. It's an altercation. It's an argument. You have an argument. You have two different points of view. You live with your point of view. I live with my point of view, but we live together. That sort of confidence has to be built over the years in your behavior. And again, like yes, day before, a lot of mothers were asking me about कि relationships के affairs होते हैं बच्चों के, या girlfriend बना ली बच्चे ने, boyfriend बना लिया, तो वो भी आप समझिए कि this is just your kite flying high, soaring high. Cannot stop it. आप ज्यादा उसको करोगे तो वो कट जाएगी, उड़ जाएगी, फंस जाएगी. आपको उसको संभालना है अभी. So your children should have the confidence to come and confide in you without the fear of being judged. Judge तो दुनिया भर करेगी उनको, कुछ भी वो करेंगे, कोई ना कोई उनको जज करेगा. किसी के हिसाब से ये चीज ठीक होगी, किसी के हिसाब से ये चीज गलत होगी, लेकिन पेरेंट्स को जज नहीं करना चाहिए कभी भी. That's how you build that connection, that friendship and that everlasting bond. Yeah, thank you, Chavi. अब हमारे Q&A सेशन का टाइम है. हमारे पास पहला सवाल आया है हजीरा जी से. My 9-year-old boy has good grasping in studies, but the difficulty is to come and sit for study. Is there any trick to manage this? Yeah, just let him be. Don't ask him to sit and study. वो कर लेगा अपने आप जब उसका टाइम आएगा. जब ये जो हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें बच्चों को नर्सरी से ही इतनी पढ़ाई करानी शुरू कर दी जाती है कि बच्चा जो है ना वो ओवरवेल्म हो जाता है. बच्चे का माइंड टिल द एज ऑफ 7 is really free, and he has not come into his or her own till the age of 7. Till the age of 7 एक बच्चे को लगता है कि मैं, मम्मा, पापा, हम वन हैं. मैं का कॉन्सेप्ट नहीं होता उसके दिमाग में, मैं कि आप ये करो, मैं ये करूंगा. It's never like that, because they are in a bubble. And what we do in the conventional education system is that उनको बेचारे बबल में ही हैं अभी, तो उनको हम ABCD सिखाना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 सिखाना शुरू, 2+2 भी सिखाना शुरू कर देते हैं. 9 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है. होता क्या है कि आप जितनी जल्दी बच्चे को ट्राई करोगे कि जितनी जल्दी मैं इसको पढ़ा सकूं पढ़ा दूं, उतना ज्यादा वो स्लो होता जाएगा as he grows up. So really, please don't panic. Don't hit the panic button at the age of 9 कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है. उसको रिलैक्स करने दो, वो पढ़ेगा जब उसका टाइम होएगा, जब उसकी ब्रेन उस लेवल तक पहुंचेगी, वो अपने आप स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करेगा. डोंट पैनिक अबाउट दैट. Right. हमारे पास अगला सवाल. Please, ladies, raise your hand and ask your question. Please feel free. हमारे पास कनिका जी थी. She want to speak something. कनिका जी, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो अनिका मैम. हेलो छवि मैम. Hi. छवि मैम, Hi, स्टोरी Kanika. टेलिंग जैसे स्टोरी टेलिंग आपने लास्ट सेशन में बताया था, और बहुत ही इफेक्टिव है स्टोरी टेलिंग. मैंने जैसे आपको लास्ट सेशन में बताया था, मेरा एक कंफ्यूजन चल रहा था जॉब और उसको लेके, बेटी का बताया था रील्स का, बट मैंने अभी वो चीज नहीं ट्राई करके मैंने उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया, स्टोरी टेलिंग पे. बेसिकली जब रील्स देखती है तो उसको है ना मेकअप और ये सब चीज देख के बहुत अट्रैक्ट होती है. मैंने उसको स्टोरी टेलिंग में एक मैंने बोला, अगर तुमको आगे जैसे बोला किड्स वगैरह के फैशन शो होता है, इस पे जाना है, तो ये प्रिंसेस जो है स्पेक्स नहीं लगाते, पर अगर तुम इसको रोज रोज देखोगी ऐसे,
तो आँख पे ये होगा, आपको आप स्पेक्स लगाओगे तो फिर आप आगे ये सारी ड्रेसेस और ये सब नहीं कवर अप करवाओगे। वो अभी कल बोला उसको, लेकिन आज तक अभी तक ये इफेक्ट है कि उसने फोन नहीं उठाया। तो स्टोरी टेलिंग जब उसको रियल लगा, मैंने उसको ये चीज समझाया, तो अब मुझे लग रहा है मुझे उस चीज पे ना जाकर कि नहीं मेरे को जॉब छोड़ना है या फिर घर देखना है, तो स्टोरी टेलिंग ही इफेक्टिव लगा बजाय उस चीज का। इसलिए थैंक यू सो very मच। good. Most welcome. I'm so happy it worked. थैंक यू सो मच। I'll also share an experience here. My daughter Ariza was a thumb sucker, and हम लोगों ने बहुत ट्राई किया like any other parent कि उसका अंगूठा छूट जाए, ठीक है। तो हम लोग उससे बात करते रहे, उसको समझाते रहे कि मत करो मत करो। Eventually when she was 4 years old, when she was 4 years old, उसने suddenly one night अपने आप अंगूठा लेना छोड़ दिया। So when she turned around 6-7, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरीजा आपने what made you quit thumb sucking? She said मुझे अबू ने बोला था कि अगर मैं थम सक करूंगी, और उसके यहाँ पे ना गोल गोल सा एक एक्स्ट्रा एक बन रहा था, तो मुझे अबू ने बोला कि ये पूरा ऐसे बाहर आ जाएगा, फिर आपके कितना फनी लगेगा, अजीब नहीं लगेगा फिर। तो कहती मैंने सोते सोते इमेजिन किया कि मेरे 2 थम्स हो गए हैं, और फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं करना है। That was just it. Cold turkey, she stopped sucking her thumb. A 4-year-old child. That is the impact of storytelling. Okay, next question. Right. थैंक यू छवि। हमारे पास अगला सवाल ममता अग्रवाल जी से है। ममता अग्रवाल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो मैम। हाय मैम, मुझे बताइए, बच्चों में डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है बहुत कम होती है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए? जैसे कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए वो पूछते हैं मम्मी आप बताओ, हम बताते हैं, वो उस चीज को करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं आपने बोला था इसलिए ऐसा हुआ है, हम तो कुछ और करना चाहते। तो उस केस में क्या किया जाए? So ये तो आई थिंक ये हम बड़े भी करते हैं। हमें कोई अपनी गलती के लिए किसी को ब्लेम करना होता है। Somehow we feel better with it. हमको लगता है ये गलती नहीं रही, as long as ये किसी और पे हमने ब्लेम कर दिया। You know? अगर मतलब सिंपल सी चीज है, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी और की चॉइस के रेस्टोरेंट में गए और वहां जाके पेट खराब हो गया, तो उनकी गलती है। खाना भले ही हमने ज्यादा खाया हो, लेकिन गलती उनकी है। तो बच्चों का भी सेम मेंटालिटी होती है। सो व्हाट आई डू इन अ सिचुएशन लाइक दैट इज कि मैं बच्चे को चॉइस देती हूँ, मतलब प्रोज एंड कॉन्स समझाती हूँ दोनों चॉइसेस के। अब लाइक मेरे साथ क्या होता है दैट इफ अरीजा कम्स एंड आस्क्स मी कि आप बताओ, तो जो मैं बोलती हूँ उसमें वो कोई फॉल्ट निकालती है कि नहीं लेकिन इसमें तो ऐसे होता है, फिर ये कैसे कर सकते हैं। फिर मैं दूसरा बोलती हूँ, तो बोलती है नहीं नाउ यू आर सेइंग इट बिकॉज आई सेड दैट, यू आर नॉट गिविंग मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। कैच 22 फंस गए। तो मैं उसको दोनों सिचुएशन जो पूछती है कि ये बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मैं ये ड्रेस पहनूं कि ये ड्रेस पहनूं, मैं बोलूंगी पिंक पहन लो, तो नहीं बट एवरीबॉडी इज गोइंग टू वेयर पिंक, देन आई डोंट वांट टू वेयर पिंक। देन ऐसे अच्छा ठीक है तो फिर आप व्हाइट पहन लो। नहीं वो तो अब तो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैंने पिंक के लिए ये बोल दिया। इट्स यू आर नॉट गिविंग मी योर ऑनेस्ट, यू टेल मी ऑनेस्टली व्हाट यू थिंक। तो मैं अभी उस चीज में पढ़ती ही नहीं हूँ, बिकॉज ये जो है ये ऐसा दलदल जैसा होता है, आपने पैर रखा फंसते चले जाओगे, वो आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। So I tell her कि if you wear the pink dress, these are the highlights of the dress. If you wear the white dress, these are the highlights. White dress के साथ, for example, white dress के साथ आपको ये वाले शूज आप पहनोगे, फिर ये शूज में आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा। पिंक ड्रेस पहनोगे, उसमें नीचे शॉर्ट्स हैं, आप आप जंप करोगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। बाय द टाइम आई एम डन वो उसका डिसीजन हो जाता है। नहीं ठीक है मैं ये हाँ ओके फाइन थैंक यू मैं जा रही हूँ। So ultimately she decides, but I just give her suggestions on how make the decision making process easier for her by showing her a larger picture. Right. Thank you, Chavi. अब हम एक सवाल चैट बॉक्स से लेंगे. We have Forum Shah asking, what are your views on tuitions? And she thinks that it's a super burden on the kids. Yeah, tuitions मैं तो to be honest I'm very against tuitions. बिकॉज आई थिंक हमारे स्कूल्स में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो इनफ है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे से पिकअप ही नहीं हो रहा है, मे बी दैट चाइल्ड इज नॉट मेंट फॉर इट। मतलब आई एम दैट प्रोग्रेसिव कि जो बच्चे के दिमाग में एक सिंपल सी चीज नहीं आ रही है उसको आप और ओवरलोड कर दोगे ट्यूशंस पे भेज के। पहले तो स्कूल में बेचारा स्ट्रेस्ड है, फिर आप उसको ट्यूशन में भेज के स्ट्रेस करोगे, तो उसके माइंड पे कितना ओवरलोड हो जाएगा।
how is he going to balance his mental sanity? I think it's very important कि स्कूल बच्चा जा रहा है हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, थोड़ा टाइम उसको अनवाइंडिंग के लिए भी होना चाहिए. It's very important for the mind's recovery. Having said that, अगर if it's an older child and grades are important, then if tuition is helping and if the child is saying कि मुझे I need help, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे जाना है. Lot of children say that also. They are keen on learning, but school में environment ऐसा है कि बहुत बच्चे हैं, टीचर अच्छा नहीं है, समझा नहीं पा रहा है, या मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो डांट लगा देता है. Genuine problems hai, definitely send them for tuition, no problem. But just keep a balance. I feel over-educating kind of really stresses the mind of the child so much. By the time he reaches the adult world and reaches the office-going life, he's already drained out. Thank you, Chavi. Thank you, Forum. अगला सवाल Thank you, Chavi. जसप्रीत. Yes, Thanks thank to you. giving this one. Actually, this I want from you actually, that to give lots of mothers, because nowadays this is really panicable thing that people wants to put for the tuitions. People, kids are going for 4 hours for the tuitions. They get panic, and then again parents are also getting panic. So really, as a mentor, I wanted to you to advise all. Please unnecessarily don't put in the tuitions. बच्चों को unnecessarily burden में मत डालो. Yeah, correct. Really, thank you so much. Thank you, Forum. अगला सवाल हमारे पास जसप्रीत कौर से है. जसप्रीत जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ जी मैम, जैसे अभी आपने मुझसे कहा था, सबसे कहा था कि हमें 2 to 4 years बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, बर्डन नहीं डालना चाहिए, पढ़ रहा है ठीक है, नहीं पढ़ रहा है ठीक है. मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. मेरा बेटा 9th स्टैंडर्ड में है, बहुत मतलब कि इतना पढ़ता है, ठीक है, एग्जाम टाइम है, क्लियर कर लिया, दैट्स ऑल. लेकिन अगर उसको मोटिवेट करना हो तो मैम मैं कैसे करूँगी? मेरी बेटी है, वो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करती है, तो वो छोटी है, डॉटर शी इज इन अ फर्स्ट क्लास, तो उसको मैं कैसे इस चीज के लिए रोक सकती हूँ? यार आप बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए. आप मोटिवेट करने की कोशिश मत कीजिए, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. वो मोबाइल पे नहीं लगेंगे. आप मोबाइल मत यूज कीजिए उनके सामने. वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बच्चों से सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, हमें खुद भी करना पड़ेगा. हमें फर्स्ट वी हैव टू बी अ पेरेंट, देन दे विल बी आवर चाइल्ड. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ अस फॉरगेट दैट. हम लोग अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमको वो चीज हम करना भूल जाते हैं. सो आई एम सेइंग डोंट ट्राई टू मोटिवेट हिम. आई एम टेलिंग यू, माय डॉटर इज 10 एंड शी गोज टू दिस Waldorf स्कूल, जहाँ पे एजुकेशन का जो रिदम है वो बहुत स्लो है. सो वो मैथ्स में जो आज पढ़ रही है, वो प्रोबेबली एक कन्वेंशनल स्कूल का बच्चा 2nd grade में पढ़ता होगा. शी इज इन grade 5 राइट नाउ. आई डोंट पैनिक. She was not taught ABCD till grade 2. She learned it on her own in grade 2. Suddenly grade 2 में she started reading books. Today she is a voracious reader. वो एक बुक उठाती है तो खत्म करके ही उसको नीचे रखती है. उसको मैंने कुछ नहीं सिखाया, उसको मैंने कुछ नहीं फोर्स किया. मैंने ना ABCD के लिए फोर्स किया, ना मैंने उसको किसी चीज के लिए मोटिवेट किया, ना मैंने उसको किसी चीज के लिए बोला कि ये करना है, ये नहीं करना है. She could. There were some kids in her class who started reading before her. There were some kids in her class who were reading after her. For the longest time, 2nd grade पूरा वो अपने alphabets भी उल्टे लिख रही थी. Not just 3 and B and D. She was writing P उल्टा, Q उल्टा, R उल्टा. अरीजा में E भी उल्टे थे, Z भी उल्टे थे. इतनी उसकी बुरी हालत थी. I never panicked. Suddenly one day I saw her paper and she has the best handwriting and she's has a running hand and she's writing very nicely. और वो छोटा छोटा भी लिख लेती है, बड़ा बड़ा भी लिख लेती है. बच्चे का अपना एक प्रोसेस होता है, आप उसको मत जल्दी करने की कोशिश मत कीजिए. एंड टुडे आई एम सेइंग दैट इवन दो शी मे बी academically their whole education method may be like a 2nd or a 3rd reader, but the intelligence level that these kids have is beyond a 5th grader. It's totally beyond a 5th grader. आप उससे एडवाइस मांगिए किसी चीज पे, आपको बड़ों से बेटर एडवाइस देगी वो. Simple things. Like today I decide what to wear for an event. I ask her. And the feedback that she gives me, it is जैसे हम लोग कैसे, हमसे कोई पूछता है ये कैसा लग रहा है, बोलते हैं अच्छा लग रहा है या गंदा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है. She will tell you क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है. इसका जो पिंक है ना, ये ऐसा लग रहा है, it's looking too bright, it's looking like you're going for a शादी, it's not looking like an event. You want to go for an event, you should wear a little subtle color. These are the kind of feedbacks that she gives me, because I have not forced her to do anything. I have just let her mind prosper. So don't force your child. Just let their mind prosper. Encourage them and spend a lot of time with them. Lot of time. I cannot even stress enough how important that is.
आप बात भी मत करो, आप उनकी बात सुनो, एब्जॉर्ब करो, अपना उसके ऊपर कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू मत थोपो, उनकी बात सुनो, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है. You will understand their level of intelligence and you will feel confidence. I'm sure you will feel confident कि मेरा बच्चा ठीक है, ये कर लेगा लाइफ में कुछ ना कुछ. अभी नहीं करेगा, 9th में नहीं करेगा, 12th में कर लेगा, कोई नहीं. थैंक यू छवि. थैंक यू जसप्रीत जी. अगला सवाल हमारे पास प्रीति अग्रवाल जी से है. Hi, Savi ma'am. Hi. I have a 9-year-old daughter. My question is like मैं उसको जब भी कुछ बोलती हूँ करने के लिए, every time she says 2 minutes मम्मी, 5 minutes मम्मा, and 2 minutes के बाद भी वो वैसी रहती है, वो काम नहीं होता. 5 minutes के बाद फिर बोलना पड़ता है बाबू 5 minutes हो गया, हाँ मम्मी कर रही हूँ, मोबाइल छोड़ दो, हाँ मम्मी, दूध पी लो, हाँ मम्मी. मतलब वो 2 और 5 minutes होता ही नहीं है, तो वो कैसे उसको समझाऊं कि 2 minutes में करना, 2 minutes में आपको करो. तो सेलिब्रेट करना चाहिए, आपकी बेटी बहुत स्मार्ट है. ये तो इंस्टा पे रील्स देखते हैं आप, वो लड़की बैठी है मेकअप कर रही है, हस्बैंड बोलता है कितना टाइम बोल तो रही हूं, वो YouTube इंस्टा पे रील्स भी घंटे बनाती से है. बोल रही हूँ 5 मिनट, राइट? जोक है, बट कोई बात नहीं यार, बच्चा है, बच्चे का दिमाग जो है ना, वो क्या बोलते हैं, हाउ डू यू पुट इट, इट्स वेरी फास्ट एंड वॉलेटाइल. हमारी तरह नहीं होता. हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू बी अ काम पेरेंट. यू नीड टू बी रियली काम टू बी एबल टू डू समथिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर. आप उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट फोर्स हर, यू कैन जस्ट जेंटली टेल हर अगेन, बेटा रख दो, अभी मैंने बुलाया था, आपने बोला था 2 मिनट, आप फिर बोलो, यही कर सकते हो आप. उसके अलावा आप ज्यादा करोगे तो बात जो है वो बिगड़ती चली जाएगी. ये करती हूँ बाबू 2 minutes हो गया, बेटा 2 minutes हो गया. यार छोड़ दो ना, किसी दिन छोड़ दो. मे बी शी फील्स कि ये तो सारा दिन यही बोलती रहती है, मम्मी तो सारा दिन यही बोलती रहती है, इनकी बात सुन के क्या करना है, तो दिन में 50 बार यही बोलती हैं, मैं 50 बार थोड़ी सुनूंगी. यू नेवर नो हर थॉट प्रोसेस. लेट हर बी. वन डे डोंट से एनीथिंग. चेंज योर टैक्टिक, कुछ बदलो. फिर ये मत बोलो कि 2 मिनट में दूध पी लो या खाना खाने आ जाओ, ये मत बोलो, कुछ और बोलो. उसको मोबाइल से हटाने के लिए कुछ और बोलो, डिस्ट्रैक्ट हो. अरे सुनो, आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड. कम आई टेल यू. उसी टाइम आएगी छोड़ के. चेंज योर टैक्टिक्स. आई डू दैट, इट ऑलवेज वर्क्स, इवन विद द 4-year-old, इवन विद द 10-year-old. छोड़ छाड़ के दोनों आते हैं, क्या हुआ. But then you have to make sure that you say something substantial. कुछ आप फट से सोचो कि मैं क्या, नहीं तो next time नहीं आएंगे. So you have to, like, I'll tell her, I have to show you something very interesting. I have to show you something. सब छोड़ के आएगा, show you something. क्या show है? डाइनिंग टेबल पे बैठी हूँ, खाना लगा हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग उसको दिखाना पड़ेगा मेरे को उस टाइम. ये नहीं कि ये देखो रोटी बनी है, सब्जी बनी है, ये कोई इंटरेस्टिंग नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. थैंक यू प्रीति जी. थैंक यू छवि. अगला सवाल हमारे पास मीना जी से है. मीना जी आप अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो मैम. हाय मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है अपने बेटे के लिए. वो 19 years old है, लेकिन उसको ना डिसिप्लिन में मुझे रखना है. जैसे वो मॉर्निंग में उठता है बहुत लेट, रात को सोता है बहुत लेट, फ़ोन चलाते हैं आजकल बच्चे. लॉकडाउन के बाद पबजियाँ इनकी चलती है कंटिन्यू, तो वो लोग छोड़ते नहीं, 1-1, 1.5 घंटा कंटिन्यूसली फ़ोन चलाते हैं. 12, 12:30 वो सोता है रात को, और मॉर्निंग में उसका कोई शेड्यूल नहीं है. 10 बजे उठ रहा है, 10:30 बजे उठ रहा है. एक्चुअल में हमारा स्टोर है मोबाइल का, तो वहाँ कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जाना है, कि 8 और 9 o'clock जाना है, पहुँचना है. तो 11-12 बजे ही हमारा स्टोर ओपन होता है. अब वो अपने फादर के साथ जाता है बिजनेस पे, लेकिन एक जो शेड्यूल हमें बनाना है उसका कि भाई मॉर्निंग का वो टाइमली उठे, रात को टाइम से सोए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही. मैम कैसे उसको कन्वे करें हम लोग. बट अभी आप मुझे बोल रहे हो कि वो अपने फादर के साथ जाता है, तो रूटीन तो आपको पहले उनके फादर की ठीक करनी पड़ेगी ना, मैम. क्योंकि जा तो उनके साथ रहे. आप एक काम करो, आप अपनी मदर इन लॉ को बोलो ये चीज कि ये क्या किया है आपने, बिगड़ा हुआ मेरे को क्यों दे दिया है, आप उसको सुधार के वापस लेके आओ. ये तो सही. हमारा काम ही ऐसा है, 11 से 12 से पहले नहीं खुलता है स्टोर, किसी का भी मोबाइल स्टोर. हाँ, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, बट अंडरस्टैंड माय पॉइंट. मैं सुनिए, मेरे हस्बैंड बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, वो 6 बजे उठ जाते हैं करेक्ट. इवन मैं भी नहीं उठ पाती, मैं 8 से 8:30 बजे उठती हूँ, वो 6 बजे उठ जाते हैं. वो चाहते हैं कि मैं भी टाइमली उठूँ, मेरा बेटा भी टाइमली उठे. फिर उठ के चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप योगा करें, या कुछ भी आप वॉकिंग के लिए जाएं, कुछ भी व्हाटएवर. वैसे मैं दिन भर में करती हूँ, मैंने योगा क्लास भी ज्वाइन की हुई है, लेकिन बेटे को कैसे कन्वे करें, उसका वेट. बहुत ठीक है, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. नाउ माय पॉइंट इज कि आप बोल रही हैं कि आप लेट उठती हैं, ठीक है, हस्बैंड बहुत जल्दी. सुन लीजिए, आई एम रिप्लाइंग टू योर क्वेश्चन नाउ, यू कैन म्यूट योरसेल्फ.
आप लेट उठती हैं, हस्बैंड जो है वो जल्दी उठते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहती हैं कि बेटे की अच्छी रूटीन बने, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 19 इज टू लेट. इट्स टू लेट इन द डे बिकॉज ही इज एन अडल्ट नाउ. आपका कोई हक ही नहीं है उसको चेंज करने का, पहली चीज. दूसरी चीज, मतलब इट्स लाइक एज गुड एज सेइंग कि वो ऐसे किसी सेशन में पूछ रहे हैं कि मम्मी इतने बजे उठती है, मैं चाहता हूँ कि मम्मी मेरे टाइम पे उठे, मैं क्या करूं बताइए आप कैसे उनको. ये वही सवाल है बिकॉज ही इज एज मच एन अडल्ट एज यू आर. ठीक है, तो उसका थॉट प्रोसेस जो है वो उसकी एज के हिसाब से जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो. सेकेंड चीज ये कि ये जो रूटीन की आप बात कर रहे हो ये बहुत जल्दी लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए, और ये आप तब तक इनकलकेट नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद एक फिक्स रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हो. तो आप अपनी रूटीन फिक्स करो तो उसको आप बोलोगे ना कि आप भी अपनी रूटीन फिक्स करो. दूसरी चीज. तीसरी चीज ये कि आप चाहते क्या हो, वो लाइफ में करे क्या, लाइक व्हाट डज ही वांट टू डू इन लाइफ. फॉरगेट यू आल्सो. What are his goals and aspirations in life? Does he want to sit at the mobile shop? Is that what he wants to do when he grows up, or when he wants to do वो ही करना है उसको, तो ठीक है. तो दुकान लेट खुलती है तो जब भी उसको इंटरेस्ट है मोबाइल के, उसमें उसको इंटरेस्ट है. जब भी हमने उसको पूछ के ही, उसने स्टडीज ये है कि बीकॉम उसका कोरस्पोंडेंस चल रहा है, वो रेगुलर नहीं जा रहा है कॉलेज, तो उसको पूछ के ही हमने, कोई बर्डन नहीं है हमारे घर में, बिल्कुल फुल फ्रीडम है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वो समझता है एज अ 19-year-old ग्रोन अप अडल्ट, ही अंडरस्टैंड्स कि मुझे शॉप पे जाना है, मेरी शॉप 12 बजे खुलती है, तो आप उसको लॉजिकली नहीं समझा सकते कि आप 9 बजे क्यों उठो या 8 बजे क्यों उठो. आप नहीं समझा सकते बिकॉज उसका चॉइस ऑफ करियर में 12 बजे उठना इज हिज रूटीन. अब जैसे लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं जो रात को जाते हैं काम पे, वो रात को ही जाएंगे ना, उनका तो रूटीन ही बिल्कुल उल्टा है, बट दैट इज ओके एज पर देम. सो अनलेस ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इफ एज लॉन्ग एज ही इज डूइंग हिज वर्क एंड ही इज गेटिंग अप एट हिज टाइम. और जो भी 10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है, जब भी उठ रहा है, रोज सेम टाइम पे उठ रहा है, जस्ट रिलैक्स. थैंक यू मीरा जी, थैंक यू छवि. अगला सवाल हमारे पास तृप्ति जी से है. तृप्ति जी आप अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो मैम. हाय मैम, माय डॉटर इज 10 years old. तो अभी क्या हो रहा है ना, लाइक सम फ्रेंड्स अचानक से अच्छे से बिहेव करते हैं, लाइक अभी उनका वो बेस्टी एंड ऑल चलता है, शी इज माय बेस्टी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, व्हाटएवर. एंड सडनली उनको कोई और मिल जाता है एंड फिर दे स्टार्ट so this is one thing I don't really sure, but like emotionally how do I tackle with her? वो बहुत down हो जाती है, like emotionally वो she starts crying. थोड़ा सा I missed it in the middle. Did you hear her, Hanika? Yes, I think here she want to discuss about the peers. So इनके best friends से अगर कभी झगड़ा हो जाता है या if she apart from them then she feel down. So how to motivate them और फिर बाद में उनको वापस से cheer up कैसे करना है? So I'll tell you, Trupti, कुछ चीजें होती हैं लाइफ में जो हमें खुद ही सीखनी पड़ती हैं. आपको सिर्फ अपने बच्चे को सिक्योर बनाना है. यू हैव टू मेक देम कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, ताकि इन द लॉन्ग रन इन चीजों से उनको फर्क नहीं पड़े. क्योंकि फ्रेंड्स उनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, तो आज अभी बच्चे तो क्या ही बोल देंगे, जब वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जाएगी, इफ शी इज नॉट इक्विप्ड to handle this kind of pressure, how is she going to sustain herself in the real world? People are very mean today. People are brutal. But you cannot come to her rescue every time. ये जो चीज है, फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है लाइफ में. यही एक्सपीरियंस उसको आगे चल के इक्विप करेगा जब बॉस उसको नौकरी से निकाल देगा, कल से मत आना, या ये क्या है, व्हाट इज दिस रिडिकुलस पीस ऑफ शिट, व्हाट इज दिस, उनको काम नहीं आता है. People are really mean nowadays. And the world is only becoming worse. It's not getting any better. चाहे कुछ भी बोल दो आप, तो बच्चे को रफ एंड टफ कैसे आप बनाओगे? आप छोड़ दो उसको अपने हाल पे, उसको बोलो बेटा हम सबने ये झेला है. And I also tell Ariza the same thing. She's exactly the same problem she has. I tell her my own experiences, and I also had these experiences with friends who were mean to me, who bullied me as a child. We all have gone through it. कुछ होते हैं बच्चे जिन्हें हम बुली करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो हमें बुली करते हैं. It's a part of growing up. So just make sure that she knows that you are there with her. You are there for her. Listen to her. Listen to her. Listen to her. Listen to her. I mean, there's no need to even advise her. But सुनो, उसके दिल में कुछ नहीं रहना चाहिए. वो उसको पता है कि मैं माँ के पास जाके सब बोल सकती हूँ.
माँ मुझे जज नहीं करेगी, माँ मुझे हक करेगी, प्यार करेगी. That is all she needs, a sense of security. And tell her that, you know, she's better than everyone. She's good. She will find a friend. It's just too young. It's just too early in life. She will find friends. हर किसी के होते हैं. आज की डेट में भी हमारे नए फ्रेंड्स बनते हैं, फिर कोई कुछ मीन कर देता है, झगड़ा हो जाता है, then we stop talking. It's a part of life. You just need to keep reiterating that, keep reminding her that, and she'll get it. I think we take one more question. Yes, thank you Tripti जी. अगला सवाल, प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी के भी पास कोई सवाल है. ये हमारा आखिरी सवाल होगा इस सेशन का. Okay, I think कोई सवाल नहीं है. I would like to thank. Okay, we have Jaspreet Kaur again asking a question. Yes, Jaspreet, please. मैम सॉरी, बार बार क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ, पर मेरे माइंड में फिलहाल जो भी चल रहा है बस मैं वही आपके आगे बता रही हूँ. तो जैसे समर वेकेशंस चल रहे थे, आफ्टर 2 hours मम्मा आई फील हंग्री, एंड आफ्टर 2 hours मम्मा आई फील हंग्री, मम्मी कुछ बना दो, मम्मी कुछ बनाए, कुछ अच्छा सा बना दो. तो मतलब कि समझ में नहीं आता कि सब कुछ खाकर बनाकर भी बच्चों को हर 2 घंटे बाद ये क्यों रहता है कि हमें कुछ चाहिए, कुछ अच्छा सा, मम्मा कुछ अच्छा सा, डोंट नो व्हाट अच्छा सा, नहीं बस अच्छा सा. तो समझ में नहीं आता है कि रेगुलर आप किचन में कितने टाइम तक कंटिन्यू लगे रहोगे, या फिर ऐसा भी रेगुलर घर का ही खाना पसंद आए, बाहर से ऑर्डर कर लो. अब हमने ये राइस खा लिए, अब हम रात को इसे कंटिन्यू करेंगे, अब आप बाहर से ऑर्डर कर लो. 7 बजे तक अगर डिनर हमारा ऑलमोस्ट हो जाता है तो 10 बजे तक मम्मी देन आई फील हंग्री, देन आई विल व्हाट आई विल ईट, मैं क्या खाऊं. तो मैम इस जगह मैं बहुत ज्यादा वो हो जाती हूँ कि बच्चों की बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. बच्चों ऐसा भी लगता है कि बच्चों को इतना ज्यादा इस एज में नहीं देना चाहिए. तो और जब वो नहीं खाते, भूखे रहते, तब लगता है नहीं भूखे हैं, तो देवी तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ. तो आप एक रूटीन फिक्स कर लो ना, एक टाइम फिक्स कर लो, मील टाइम्स फिक्स कर लो. मेरे बच्चों के मील टाइम्स तो मतलब जब वो पैदा हुए थे डे 1 से मील टाइम फिक्स थे. दैट इज द ओनली वे यू कैन रेगुलेट हंगर, बिकॉज हंगर एक ऐसी चीज है कि लाइक लोग बोलते हैं भूख लगी है तो खाना खा लो, लेकिन जो आदमी ओबीज है उसे क्या पता भूख कब लगती है, उसको सारा दिन भूख लगती है, तो क्या वो ओके है? या जो आदमी बहुत पतला है, बहुत ही पतला है, कमजोर है, उसको भूख ही नहीं लगती, वो बोल रहे हैं, आप उनको बोल रहे हो भूख लगे तो खाना खा लो. दैट्स नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट टू गो बाय. यू हैव टू ट्रेन द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देयर हंगर, रिकॉग्नाइज देयर हंगर. ये जो समर वेकेशन की आप बात कर रहे हो, दिस इज ईटिंग आउट ऑफ बोर्डम. कुछ करने को नहीं है, खा लो, चलो खाने का. मेरे साथ भी होता है, 4 दिन कोई काम नहीं है, अगर बीमार हैं, घर पे पड़े हैं, तो अजीब अजीब थॉट्स आते हैं, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, राइट? और मैं तो अरीजा को आई एनकरेज हर टू गो टू द किचन एंड कुक. आई डोंट नो हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड? My child is first is 12th class, and second is in 9th class, and third is in 1st class. हाँ, तो ठीक है, फर्स्ट वाला थोड़ा छोटा है, बट बाकी सब तो बिग इनफ. अरीजा स्टार्टेड कुकिंग, अरीजा स्टार्टेड मेकिंग अ सैंडविच फॉर हरसेल्फ एंड मी एट द एज ऑफ 7. वो किचन में जाती थी, ब्रेड फ्रिज से निकालती थी, टमाटर चाकू से काटती थी, खीरा काटती थी, एंड नमक मिर्च डाल के. आई हैव पिक्चर्स ऑफ दैट व्हेन शी मेड मी द फर्स्ट टाइम. बट शी इज केपेबल ऑफ डूइंग इट. शी कैन मेक हर ओन मैगी इफ नथिंग एल्स. 2-3 चीजें हैं जो उसको सिखा दी है मैंने, और वो बिना किसी के अटेंड किए बना भी लेती है. एंड ऑल्सो खुद करना पड़ता है ना, तो बच्चे सोचते हैं 2 बार कि अरे जाना पड़ेगा, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, साफ भी करना पड़ेगा. वो करना है, वो सिखाना है आपने उनको. तुमको भूख लगी है, आओ चलो मैं सिखाती हूँ, तुम खाओ, बनाओ, खाओ, साफ करके रखना, किचन क्लीन करके रखना, अदरवाइज नॉट अलाउड. इट्स अ रूल, इट्स अ रूल ऑफ द हाउस. सब फॉलो करने. आप भी कर रहे हो, आप बनाते हो तो क्या किचन गंदा छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हो. तो जो बना रहा है किचन साफ करेगा, अपनी प्लेट उठा के रखेगा, अंदर धो के रखेगा, जो भी आपके घर का रूल है वो करो. एंड फिक्सिंग टाइम इज हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज बच्चा भी फिर क्या, जैसे माय पीडियाट्रिशियन हैड एडवाइज्ड अस कि 4 घंटे से पहले बच्चे को कुछ मत दो. 4 घंटे का, 3 to 4, 3 तो मिनिमम, उसके पहले कुछ मत दो. So you give them something at 7, then you give them at 10, then 1 o'clock lunch, then 4 o'clock a snack, and 8 o'clock dinner done. तो बच्चा को भूख भी प्रॉपर लगी है तो वो प्रॉपर खाएगा. वो प्रॉपर खाएगा तो 3 घंटे सस्टेन करेगा. लेकिन वो स्नैकिंग, छोटी छोटी स्नैकिंग जो कर रहे हैं, उसमें ना वो प्रॉपर खा पा रहा है, ना उसको कुछ सस्टेनेंस हो रही है. दैट इज द प्रॉब्लम. जस्ट फिक्स अ टाइम टेबल. से आई कांट कीप कुकिंग फॉर यू द होल डे, सो यू टेल मी कि आपको 4 टाइम या 5 टाइम जो भी आपके टाइमिंग्स हैं, इस टाइम पे ये मिलेगा, लंच में ये बनेगा, डिनर में ये बनेगा, इवनिंग स्नैक में ये मिलेगा, ब्रेकफास्ट में ये मिलेगा, मिड मॉर्निंग आपको ये फ्रूट मिलेगा. कुछ भी जो है आप डिसाइड करके आपकी भी लाइफ सिंपल, उसकी भी सिंपल. वो बेचारा कंफ्यूज, अब क्या खाऊं. बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये. थैंक यू छवि. ये हमारा आखिरी सवाल था आज के सेशन का, आई थिंक, एंड वी एंड अ पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग सेशन विद दिस.
हम लोगों के 2 सेशन बहुत अच्छे रहे छवि. आई हैव अ वेरी गुड फीडबैक एंड यस पर्सनली ऑल्सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर टेकिंग आउट टाइम और हम लोगों के साथ में ये सेशंस करने के लिए. आपके एडवाइस बहुत हम सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं उनको जरूर आई कैन सी लॉट ऑफ हार्ट्स एंड थम्स अप फ्रॉम द लेडीज. यस थैंक यू सो मच. हम लोगों को कहीं ना कहीं मुझे रोज मुझे कल से मैसेजेस आ रहे हैं, परसों से मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ये एडवाइस बहुत अच्छा लगा, हमने यहाँ पे जाकर के इसको अप्लाई किया तो हमें उसके रिजल्ट्स मिले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं. Chavi, if would you like to say a few words about the sessions, how you enjoyed it? I just want to say thank you so much. I'm absolutely humbled and I hope कि और भी आपको जो भी मैंने बोला है उससे सबको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो. And please reach out to me also on Instagram. Let me know whether something worked or didn't work. I'll be happy to help. And I had a great time in this session. And also I feel that these kind of sessions when you talk about parenting, अपने खुद के भी जो फंडे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, एक बार दोबारा रिविजन हो जाता है और हम भी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो भी एक बार सामने आ जाती है कि अरे हाँ ये मिस्टेक तो मैंने भी की थी अभी 2 दिन पहले. So thank you so much for sharing your experiences with me also. It makes me feel like I'm not alone and सब लोग सेम ही बोट में जो है वो सेल कर रहे हैं. And all the best to all of you. Okay, thank you Chavi. हम एक लास्ट अपना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. Everybody if you can do this and I take the screenshot. Yeah. Thank you. Yes. Yes, thank you so much. Thank you Chavi. Thank you everyone. ये हमारे इस मंथ का लास्ट सेशन था. हम अगले मंथ हम जुलाई में फिर से मिलेंगे with our next session on communication. So everybody stay tuned till then. Thank you Chavi. Thank you. Bye everyone. Bye. Thanks.